Morning students, welcome back to our online classes. Today we are going to discuss our previous class, that is our social science history part, chapter number 2, the Delhi Sultanate. Forts and other construction. The statement of Delhi Sultanate marked the beginning of construction of Indo-Islamic style architecture in India. जब दिल्ली सल्तनत स्थापित हुआ तब यहाँ एक आर्किटेक्चर बनवाया गया जो इंडो इस्लामिक स्टाइल में था. ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ आर्किटेक्चर लाइक फोर्ट्स, मॉस्क, tombs, houses, gardens, gates, मीनार्स एक्सेट्रा वेयर कंस्ट्रक्टेड. जब दिल्ली सल्तनत का पीरियड था तो बहुत सारे आर्किटेक्चर का वर्क करवाया गया जिसमें फोर्ट यानी किला, मॉस्क, टॉम्स, हाउसेस, गार्डन्स, गेट, मीनार्स आदि बनवाए गए. A mosque named Quwat ul Islam was built in Delhi during the time of Qutbuddin Aibak. एक मस्जिद बनवाई गई जिसका नाम कुआत उल इस्लाम था जो कि दिल्ली में बिल्ड हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर यहाँ पे मस्जिद बनाई गई थी दिल्ली में. Another important building built during Qutbuddin Aibak's region was Qutub Minar. Now important point here, who constructed Qutub Minar? तो Qutbuddin Aibak constructed Qutub Minar and only one floor of it was constructed during the reign of Qutbuddin Aibak. Iltutmish completed rest of the work after his death. Who completed the rest work? That Iltutmish completed rest of the वर्क आफ्टर डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद बाकी के वर्क्स को इल्तुतमिश ने कंप्लीट की. Renovated by Firoz Shah Tughlaq and Sikandar Lodi. Now important point here, who were renovated Qutub Minar? तो Firoz Shah Tughlaq and Sikandar Lodi were renovated Qutub Minar. Another buildings built by Qutbuddin Aibak was mosque called ढाई दिन का झोपड़ा which is located in Ajmer. Who built ढाई दिन का झोपड़ा and where it located? तो कुतुबुद्दीन ऐबक built ढाई दिन का झोपड़ा and it is located in Ajmer which is situated in Rajasthan. The construction during the period of Iltutmish includes House-e-Samim, Samim Idgah and Jama Masjid. Major construction work during the reign of Alauddin Khalji. Who constructed House-e-Samim, Samim Idgah and Jama Masjid? तो अलाउद्दीन खलजी constructed House-e-Samim, Samim Idgah and Jama Masjid, including Allied Darwaza, Series Fort and a town named Sri and House-e-Khas, तुगलकबाद, फिरोजबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहपुर एक्सेट्रा. इन सारे स्थानों का भी कंस्ट्रक्शन अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में हुआ. टाउन्स वेर सेल्टेड ड्यूरिंग द तुगलक रूल. लेकिन टाउन सब सेल्टेड हुए तुगलक के काल में. ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी फोर्ट्स, मॉस्क, लेक्स, पैलेसेस, बाथ्स, टॉम्स मीन्स कब्र, ब्रिज, इंस मीन्स सराय यानी पॉन्ड, गार्डन्स एक्सेट्रा वेयर बिल्ड इन दिल्ली. ये सारे स्थान दिल्ली में बनाए गए. टॉम्स एंड मॉस्क वेयर बिल्ड ड्यूरिंग द सैयद एंड द लोधी डायनेस्टी. टॉम्स एंड मॉस्क सैयद और लोधी डायनेस्टी के समय में भी बनवाए गए. बंदे खानस, डोम्स मीन्स गुम्बद, बादा गुम्बज, mosque and Sehabuddin tomb were the major ones among them. Vijayanagar Empire 1336 AD to 1646 AD. The process of disintegration of the Delhi Sultanate began during the time of the weak Sultanate of the Tughlaq dynasty. डिस्ट्रीगेशन मीन्स विघटन. दिल्ली सल्तनत का विघटन तुगलक डायनेस्टी के सुल्तान के शासनकाल से शुरू हुआ. Process accelerated during the सैयद डायनेस्टी एंड द लोधी डायनेस्टी. एक्सीलरेटेड मीन्स गति बढ़ाना. इस प्रोसेस की गति सैयद और लोधी डायनेस्टी के काल में बढ़ी. दिस सिचुएशन वाज फ्यूदर deteriorated by Timur's
इन्वेंशन। बाद में तैमूर के काल में सिचुएशन और बिगड़ गई। नाउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर, इन विच रूलर deteriorated the situation? तो तैमूर, in Taimur's invention the situation was deteriorated. Due to all these conditions, many North and South Indian states become independent, including Vijayanagar, Bahmani, Malwa, Mewar, Bengal, जौनपुर एक्सेट्रा। इन सारे कंडीशन की वजह से बहुत सारे नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के स्टेट स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे, जिसमें विजयनगर, बाहमनी, मालवा, मेवाड़, बंगाल, जौनपुर आदि सम्मिलित थे। लेट्स गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट विजयनगर एंड बाहमनी। Two brothers named Harihar Rai and Bukka Rai 1336 AD laid the foundation of the Vijayanagar. Now important point here, who laid the foundation of the Vijayanagar? Then Harihar Rai and Bukka Rai were laid the foundation of the Vijayanagar empire on the banks of the river Tungbhadra, making it the capital of their kingdom. उन्होंने अपने साम्राज्य की राजधानी तुंगभद्रा नदी के किनारे बनाया। द टाउन वॉज इंटियली नोन एज विजयनगर आफ्टर हिज गुरु स्वामी विद्यानारायण। शुरुआत में टाउन विजयनगर के नाम से जाना जाने लगा, जो बाद में उनके गुरु स्वामी विद्यानारायण, जो बाद में यह विजयनगर के नाम से जाना जाने लगा, जो इमायर में मिलिट्री सक्सेस किया। हरिहर राय एंड बुक्कर राय वेर द किंग ऑफ द संगम डायनेस्टी। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर, हु वेर द किंग ऑफ द संगम डायनेस्टी? तो हरिहर राय एंड बुक्कर राय वेर द किंग ऑफ द संगम डायनेस्टी एंड विजयनगर एम्पायर ऑन रूल्ड बाय द संगम डायनेस्टी, शलाव डायनेस्टी, तुल्लवा डायनेस्टी एंड अरावधी डायनेस्टी. Harihar Rai first and Bukka Rai made an important contribution in turning a small kingdom into an empire. Harihar Rai won एंड बुक्का राय का महत्वपूर्ण योगदान था एक छोटे से राज्य से बड़ा एम्पायर बनाने। रूल्स ऑफ द सल्लवा डायनेस्टी लास्टेड फॉर 20 years एंड देन तल्लवा डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड। शलुवा डायनेस्टी 20 वर्ष तक रूल किया, फिर तल्लुवा डायनेस्टी स्थापित हुआ। ग्रेट रूलर लाइक कृष्णदेव राय वॉज बोर्न इन द तल्लुवा डायनेस्टी, हु वॉज द बेस्ट रूलर ऑफ तल्लुवा डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर, इन विच डायनेस्टी कृष्णदेव राय वॉज बोर्न? तो इन तल्लुवा डायनेस्टी कृष्णदेव राय वॉज बोर्न एंड ही वॉज बेस्ट रूलर इन द this dynasty in Vijayanagar Empire. Not only this, he even got the honor of being a great ruler of India. वे सिर्फ तल्लुवा डायनेस्टी के ही ग्रेट रूलर नहीं थे, बल्कि वे इंडिया के ग्रेट रूलर थे। He won many battles during his reign. उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारे युद्धों में विजय प्राप्त की। Although Krishnadev Rai spent most of his life on the battlefield, ही डिड नॉट नेग्लेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन। कृष्णदेव राय ने अपने जीवन का अधिकतर समय युद्ध के मैदान में बिताया, फिर भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी नेग्लेंसी नहीं की। ही गोट लेक्स एंड कैनल्स डग इन द स्टेट एंड इनरिच्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को इनरिच मीन्स समृद्ध बनाने के लिए उन्होंने अपने स्टेट में लेक्स एंड कैनल्स खुदवाए। He abolished some unjust tax and gained love of the people. कृष्णदेव राय ने अन्यायपूर्ण तरीके से जो टैक्स लिए जाते थे उसे बंद करवाया और लोगों का प्यार पाया। He established a town named Nagalpur near Vijayanagar and decorated it with various buildings and temples. Who established a town called Nagalpur? तो कृष्णदेव राय established a town called Nagalpur near Vijayanagar. How can he decorated it? Then he decorated it with various buildings and temples. Krishnadev Rai was himself a great scholar. He wrote several texts in Sanskrit and Telugu. कृष्णदेव राय एक बहुत बड़े स्कॉलर्स थे जिन्होंने संस्कृत और तेलुगु में बहुत सारे टेक्सेस लिखे। ड्यू टू द
spread of literacy art, he became well known as the Bhoj of Adhar. उनकी जो लिटरेसी आर्ट यानी साहित्यिक कला थी जो फैला हुआ था, उसकी वजह से वे भोज ऑफ आधार के नाम से जाने जाते थे. आफ्टर कृष्णदेव राय's डेथ, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंस्पिरेसीज स्टार्टेड इन विजयनगर. कृष्णदेव राय की डेथ के बाद विजयनगर में आंतरिक टकराव होने लगा. Vijayanagar was defeated by the Union of Muslim States in the Battle of Talikota on January 23rd, 1565. Now important point here, who defeated Vijayanagar and when? So in 23rd January 1565, the Union of Muslim States defeated Vijayanagar. Even after the war, Vijayanagar Empire lasted for a century but did not achieve the same ग्रेटिट्यूड एज बिफोर. विजयनगर का एम्पायर 100 ईयर्स तक चला, बट उनका जो अचीवमेंट था वो पहले जैसा ग्रेटिट्यूड मतलब शान से नहीं था. किंगडम 1347 AD to 1518 AD. Jafar Khan established the Bahmani kingdom in the south during the Tughlaq dynasty in 1347 AD. Who established the Bahmani kingdom? So Jafar Khan established the Bahmani kingdom during the Tughlaq dynasty in 1347 AD. The kingdom influenced the politics of South India for almost a century and a half. किंगडम साउथ इंडिया में लगभग एक सेंचुरी एंड हाफ तक पॉलिटिकल में इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभाव में रहा. जफर खान अंडर द नेम ऑफ अलाउद्दीन बहमन शाह रूल्ड इंडिपेंडेंटली. ही annexed several territories to his state, making गुलमार एंड कैपिटल ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट. उन्होंने ये बहुत सारे प्रदेश का संलग्न किया अपने राज्य को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए. इसीलिए उन्होंने गुलाम राग को नया कैपिटल बनाया. द रीजन ऑफ अहमद शाह एंड मोहम्मद शाह थर्ड आर सिग्निफिकेंट इन द बहमनी एम्पायर. अहमद शाह एंड मोहम्मद शाह थर्ड ने बहमनी के साम्राज्य को सफल बनाया. अहमद शाह मूव्ड हिज कैपिटल टू बिदार फ्रॉम गुलामगढ़. अहमद शाह ने अपने कैपिटल को गुलामनगर से बिदार में शिफ्ट किया और बिदार में बहुत सारे बिल्डिंग्स बनवाए. मोहम्मद गवान वॉज द वजीर ऑफ मोहम्मद शाह थर्ड. हु वॉज द वजीर ऑफ मोहम्मद शाह थर्ड? तो मोहम्मद गवान वॉज द वजीर ऑफ मोहम्मद शाह थर्ड. ही क्रिएटेड अ कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन. उन्होंने एक सक्षम एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन व्यवस्था बनवाई. बहमनी पावर स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद शाह थर्ड. बहमनी का पावर मोहम्मद शाह थर्ड के शासनकाल में ज़्यादा मजबूत हुआ. आफ्टर दैट ड्यूरिंग इट वॉज हिज रीजन दैट बहमनी कैम टू एन एंड. इसके बाद इनका प्रशासन बहमनी में एंड में आ गया. होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 5 इंडिपेंडेंट स्टेट लाइक बाजीपुर, Ahmednagar, Golikonda, Bidar and Barar. Important point here, in how many states the all empire was divided? So the empire divided into 5 states and they are Bijapur, Ahmednagar, Golikonda, Bidar and Barar. And of Delhi Sultanate rule. Delhi Sultanate, which was established in 1206 AD by Qutbuddin Aibak and after 320 years come to an end in 1526 AD with the end of rule of Ibrahim Lodi. दिल्ली सल्तनत जिसकी स्थापना 1206 AD में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो 320 ईयर्स के बाद 1526 में समाप्त हो गई और इब्राहिम लोदी का शासन शुरू हो गया. इन द स्पान मीन्स अवधि या समय ऑफ around 325 years, the right powerful and sometime weak sultanate also come to the throne. The Muslim empire in Delhi was many ups and down and was ultimately destroyed. Hope this lesson be clear to all of you.
Thank you. Take care. Bye.